बुलेटिन का आगाज बेहद अहम खबर के साथ। बागियों पर सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले के बाद कर्नाटक की सियासी गर्मी बढ़ गई है। सियासी ड्रामे के बीच रियासती असेंबली में फ्लोर टेस्ट का अमल शुरू हुआ। सीएम कुमारस्वामी ने अपनी तकरीर के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए अपनी सरकार को मजबूती से चलने का दावा किया। फ्लोर टेस्ट से पहले रियासती असेंबली आज पूरे दिन हंगामा होता रहा, जिससे कई बार ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। लीडर अपोजिशन बीएस येदियुरप्पा जहां बगैर किसी बहस के वोटिंग कराने की मांग कर रहे थे, तो दीगर बीजेपी अरकान स्पीकर पर जानबूझकर डिले करने का इल्जाम लगा रहे थे, जबकि स्पीकर का कहना है कि ऐवान आपके हिसाब से नहीं चल सकता क्योंकि आईनी ज़ाब्ते को बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। इस दौरान कांग्रेस एमएलए श्रीमंत पाटिल के खत को लेकर चर्चा होने लगी, जिसमें उनकी बीमारी की बात कही गई थी। खत के हवाले से स्पीकर ने रियासती वजीर दाखिला को हिदायत दी कि वो श्रीमंत पाटिल के घर वालों से राब्ता कर ये तय करें कि उन्हें क्या हुआ है। कल सुबह तक पूरी रिपोर्ट मांगते हुए ये भी पूछा कि उन्हें मुंबई क्यों ले जाया गया। इस दौरान रियासती गवर्नर ने स्पीकर के नाम अपने पैगाम में शाम तक फ्लोर टेस्ट कराने को कहा, तो साबिक सीएम सिद्धारमैया ने स्पीकर से फ्लोर टेस्ट डालने की मांग की। वाज़ेह है कि आज ऐवान से 19 एमएलए गैर हाजिर रहे, जो कुमारस्वामी हुकूमत के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಇವರು? ಸಿನ್ಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ took oath as the chief minister, the administration has come to a standstill and maladministration is writ large. In recent days, the government have been rocked by various scandals. Chief among them were IMA Ponzi scam, in which thousands of people have been cheated of their hard-earned monies, and yet the main accused has been allowed to leave the country. The allegation are that senior functionaries of the government have been involved in the said scam. JSW land scam, wherein land has been given at throwaway rates to industrialists against public interest. Further, the coalition have been rocked by inner contradictions and the government has never remained stable. Consequently, in the recent Lok Sabha elections, despite the governing coalition contesting the election together on seat sharing formula, they lost miserably before the electorate. You ask JDS and Congress people. You are asking me. I am telling you 100% we are confident. They are going to. The motion will be defeated. You are asking me. I am telling you 100% we are confident. They are going to. The motion will be defeated. You are asking me. I am telling you 100% we are confident. They are going to. The motion will be defeated. मेरा ये मानना है कि उनको तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, और ये जो गंदगी फैली जा रही है प्रजातंत्र के इस माहौल में, ये अच्छा नहीं है। और वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं। निश्चित रूप से उनकी सरकार जाने वाली है और आज उनकी सरकार जाएगी। I am congressman. Yesterday I told you, no? I messaged all electronic media, print media, everything. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿತೇನೆ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತೇನೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾಚನೆ ಪರ ನಾನು ಮತ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು 4 ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಬಾರದು. और इससे पहले स्पीकर को इस्तीफे पर फैसला लेने के सवाल पर कल बीएस येदियुरप्पा तकरीबन भड़क उठे। हालांकि खुद को संभालते हुए उन्होंने थोड़ा और इंतजार करने की बात कही। I have got great respect about the speaker. According to Supreme Court direction, he will act. I have got confidence. But he could disqualify them also. He could disqualify these MLAs also. Let us wait and see. Why should I? He has given the instruction that whip will not
apply for them. There was no time bond given by the Wait, my dear friend. Wait, my dear friend. Wait, my dear friend. Immediately, as early as possible, you decide and report to the Supreme Court. What do you mean? तो कर्नाटक में जारी सियासी हंगामे के बीच लीडरान भगवान की शरण में भी जाते नजर आए। सीएम कुमारस्वामी कुनबे के बाद आज साबिक सीएम येदियुरप्पा की बेटी पूजा कराती नजर आई। अपने वालिद के हक में होने वाली इस मजहबी तकरीब में कई अहम पुजारी शामिल रहे। इससे पहले कल सीएम कुमारस्वामी का कुनबा मंदिरों में पूजा करता नजर आया। साबिक वजीर आजम एचडी देवगौड़ा खुद सीएम कुमारस्वामी और कुनबे के दीगर मेंबरान मंदिरों में पूजा कर सियासी कामयाबी की मन्नतें मांगते नजर आए। हालांकि ऑपोजिशन का कहना है कि आज कुमारस्वामी हुकूमत का आखिरी दिन। तो अब भगवान की शरण में जाते नजर आ रहे हैं कर्नाटक के तमाम सियासी लीडरान। बीते रोज जहां कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी अपने कुनबे के साथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते नजर आए, अपने लिए सियासी मन्नतें मांगते नजर आए, वहीं आज साबिक सीएम येदियुरप्पा अपने कुनबे के साथ मंदिर में नजर आए। आपको बता दें कि अपोजिशन और हुकूमत दोनों के ही सियासी लीडरान इन दिनों भगवान की इबादत में जुटे हैं। और इसी खबर पर जयपाल शर्मा बेंगलुरु से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अहम और ताजा अपडेट्स लेकर। जयपाल, अब क्या चल रहा है? कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट के दौरान बहस भी हुई, हंगामा भी हुआ असेंबली में, अब क्या लगता है आपको? जी देखिए, जिस तरह से असेंबली शुरू हुई थी और ये माना जा रहा था कि आज तक एजेंडा में विश्वास मत हासिल करना ही होगा, लगभग बात तो उसी से शुरू हुई थी, लेकिन जो कांग्रेस लगता है अपने मकसद में पूरी तरह से कामयाब होती जा रही है। मोशन के जिस दौरान बहस चल रही थी, इसी दौरान सिद्धरमैया ने इस मुद्दे को उठाया कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसके तहत कि जो बागी विधायक है उनके ऊपर विप लागू नहीं होगा, ये स्पष्ट नहीं है। ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि इसके ऊपर में स्पष्टीकरण दिया जाए। कांग्रेस की तरफ से ये मांग की गई कि या तो स्पीकर इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण दे या नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट जाना बेहतर समझेंगे, ताकि वहां पर से क्लियर ये जाना जा सके कि उनके इस आदेश का मतलब क्या है। क्योंकि शेड्यूल 10 के तहत किसी भी राजनीतिक पार्टी को यह अधिकार है कि यदि उनके विधायक विप के बावजूद अगर सदन में उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश में ऐसा नहीं है। उन्होंने उससे कहा है कि विप इन पर लागू नहीं होगा। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस ने मामले को काफी लंबा खींचा। उसका लंच ब्रेक के बाद अचानक वो जो एक उनके विधायक जो श्रीमंत पाटिल जो कल शाम तक बेंगलुरु में थे और अचानक सुबह वो मुंबई पहुंच गए, वहां उनकी तबीयत खराब हो गई, वो अस्पताल में पहुंचा दिए गए। इस मुद्दे को लेकर के उठाया और ये आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस तरह से उनका अपहरण कर लिया है। इस पर भी काफी देर तक खुला हंगामा हुआ, हाउस को एडजर्न कर दिया गया। फिर दोबारा जब सदन जुटा उस दौरान भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जाकर के राज्यपाल से मिलकर के आया, जहां पर उन्होंने कहा कि बात ट्रस्ट वोट की है लेकिन वो नहीं हो पा रहा, बल्कि ये विषय से भटकते जा रहे हैं और स्पीकर भी उनकी बातों में उलझते जा रहे हैं। ऐसे में राज्यपाल के द्वारा एक संदेश भेजा गया है स्पीकर को और उस संदेश के ऊपर में अभी चर्चा हो रही थी, उसको लेकर के हंगामा हुआ। उसके बाद फिर हाउस एडजर्न हो गया। इस बीच स्पीकर जो है एडवोकेट जनरल से भी मिलने पहुंचे हैं, वो उनसे राय ले रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि अभी जब स्पीकर वापस लौटेंगे तो निश्चित रूप से वो इस पर गौर करेंगे कि उनका अगला कदम क्या होगा। लेकिन जिस तरह का स्थिति है इस वक्त असेंबली के अंदर में, उससे लगता है कि ये यहाँ पर अभी हंगामा और होगा, या तो हाउस एडजर्न कर दिया जाएगा या स्पीकर को यह फैसला करना है, क्योंकि गवर्नर ने जो जयपाल एक और अलग सी तस्वीर, अजीब सी तस्वीर बल्कि कहा जाए तो बेहतर होगा, नजर आई असेंबली में। जब बहस हो रही थी, हंगामा होता, उसके बाद एक फेज ऐसा है जब सन्नाटा छाया था ऐवान में असेंबली में। उस वक्त कांग्रेस के चाणक्य कहे जाते हैं डीके शिव कुमार वजीर हैं, तकरीबन हर मुसीबत से कांग्रेस को बाहर निकालते हुए नजर आए हैं वो पहले भी, और साथ ही साथ बीजेपी के फायरब्रांड नेता श्री रामलू दोनों बातचीत करते नजर आए थे, दोनों की मुलाकात हुई थी। हालांकि ये नहीं पता चला कि उनके बीच क्या बात हुई। क्या इस तस्वीर के कोई सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? देखिए, इसको बहुत गंभीरता से मेरे विचार से लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब सदन के अंदर में नेता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, जब वो मिलते हैं वो विचारधारा में जरूर एक दूसरे के विपरीत होते हैं, लेकिन उनके अंदर में बहुत अच्छे संबंध होते हैं।
जो बात मीडिया में उभर के आई इन दोनों की मुलाकात से, उसमें ऐसा लगा कि जैसे डीके शिव कुमार जो मजाकिया लहजे में उनके कह रहे हैं कि आइए आपको हम जितने सीएम का पद देंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में काम करते रहेंगे तो शायद आपको ये पद कभी भी नसीब ना हो। तो आइए हमारे साथ। एक मजाकिया लहजे में कही गई बात थी जिस पर श्री रामुलू भी मुस्कुरा दिए, और इसके मेरे को लगता नहीं है कि इसके बहुत ज्यादा सियासी मायने निकालने चाहिए, लेकिन हाँ ये एक हल्की फुल्की तस्वीर जरूर है जी। और श्री रामुलू जो है वो भारतीय जनता पार्टी से आज से नहीं बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। और जी बिल्कुल, इस तस्वीर को बिल्कुल संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, आप जुड़े हमारे साथ, ये तमाम अपडेट आपने हमारे नाजरीन तक पहुंचाए।